try and hear the court. The court is passing an order in your favor, gentlemen. That is fraud, having been paid by the circle officer. बड़ा मुश्किल है. This is what आपके फेवर में ऑर्डर, आपके पक्ष में मैं ऑर्डर पास कर रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल है. ऐसे करेंगे, समझने का प्रयास करें. वाला फाइल डिसमिस में डिफॉल्ट कर दिया था. My lord, I am suffering from sciatica pain. Therefore, if I am hard, I shall recognize I am suffering from sciatica pain, my lord. आप बैठ कर बहस करिए. आप बैठ कर बहस करिए. आज करना हो आज करिए, कल करना हो कल करिए. Whichever is LPM 46, my lord. LPM 46. मंगवा. At serial 3, I'm suffering from severe cold. शेख मंजूर. Due to severe pain. हाँ ठीक है. आप बैठ कर बहस करिए. और बैठ के बोले. बैठ जाइए. Thanks. My lord, this LPA 46/20 arises out of CWJC 25218 of piece 19. Manzoor Alam and another are the appellants, and they are purchasers. Purchasers from respondent number 10, Rahmat, who is dead now. He died on 6th of February this year. And Rahmat's son, Mangania, respondent number 9, is alive. But he has got no possession at all. We purchased by virtue of 3 registered sale deeds. This means that Sheikh Rahmat, who was the donor and who was the vendor also, he vended the property after taking due consideration of money from his own brother, that is Sheikh Manzoor Alam. They are own brothers. Manzoor Alam and Sheikh Rahman, own brothers of sons of Sheikh Supad. Now the question arises, Mangania is the donee, Sheikh Rahmat is the donor, and Sheikh Rahmat is the vendor, and Manzoor is the vendee. The question is as to whether the gift is valid. The gift is not valid, my lord. Under section 148 of the Mohammedan law, which I read with your lordship's kind permission, Mullah Principles of Mohammedan law, 148 is the most important section. 146, which Honorable Supreme Court has dealt with. Can I have your name, Mr. Counsel? Mr. Counsel, can I have your name? नहीं, आपका नाम क्या है वकील साहब? मेरा नाम जयकृष्ण प्रसाद है। अच्छा, ये 2 चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में आप फिर हमें बताएंगे। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हम खड़ा हो तो बोलते हैं, खड़ा हो जाते हैं। मेरी आवाज आवाज हम सुन रहे हैं हुजूर। अच्छा, तो आवाज सुन रहे हैं, हमारी आवाज सुन रहे हैं। हाँ, हम सुन रहे हैं। उसके पहले जरा मेरी बात सुन लीजिए, आपकी मदद ही कर रहा हूं मैं। आप मेरी पहले बात सुन लीजिए, तब वो बहस करेंगे 148 की और रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट डीड की और मोहम्मदन लॉ की। पहले मेरी बात सुन लें। जी। आप ये बहस, जो बहस आपने अभी शुरू किया है, वही उसी बहस के कारण लर्नेड सिंगल जज के यहाँ आप हार गए। इस कारण से हार गए कि मुस्लिम लॉ में एक सेकंड सुन लीजिए, आपके केस में बहुत मेरिट है। खड़ा होकर के इसके सहारे हम भी हो जाते हैं, इसके टेबल के सहारे। ठीक, ये ऐसा है कि आपके केस में मेरिट है, लेकिन आप उसे दूसरे लाइन पर ले जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि लर्नेड सिंगल जज ने कहा कि मोहम्मदन लॉ में गिफ्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है सिस्टम। वहां जहाँ वो हिबा और यादाश्त के बल पर होता है, जी, लेकिन उसमें अगर वो रजिस्टर हो गया हो वो गिफ्ट, then the other principle applies and not the principle of Mohammedan law. Once it is registered, then the date is according to the registration. If it is by way of yadasht and hiba, alienation of property, then perhaps all these questions would arise, whether there was dominion, whether the dominion was totally given or not.
अब उस इशू, एक सेकंड सुनिए तो सही, मैं आपकी दूसरी बात बता रहा हूं, जो बात कह रहा हूं उसको समझिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये लर्नेड सिंगल जज के यहां आप आए थे अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय बीएलटी इन अ म्यूटेशन केस। म्यूटेशन हमारा एज पर लॉ हुआ है, और म्यूटेशन उसने 2 दिन में कराया है, जबकि 14 डेज कम से कम उसके लिए नोटिस होना चाहिए। उसी समय में म्यूटेशन का जो केस हुआ था, बीएलटी में जो मामला ले गए थे आप, उसमें जो ऑर्डर हुआ था, उस ऑर्डर के खिलाफ आप आए थे लर्नेड सिंगल जज में। उसको आप चैलेंज करिए कि वो इशू वहां पर था, दैट द मैटर व्हिच वाज डिसाइडेड वाज नॉट इन ट्यून विथ लॉ, देयर वाज नो फैक्चुअल statement before the BLT, and they passed an order which was not in accordance with law. They did not take into account that you have purchased the property from your brother, and now his son, who says that he had become a donee in his childhood, so he now wants to sell the property to somebody else. तो ये बहस आप ले आए, आप तो यहाँ डीड और गिफ्ट पर बहस कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल है। I want to submit, Section 148 has given very much strength on divesting the ownership and dominion. If the donor does not divest himself of the ownership and dominion, then the gift is invalid. I may kindly be allowed to read Section 148. Relinquishment by donor of ownership and dominion. It is essential to the validity of a gift that the donor should divest himself completely of all ownership and dominion over the subject of the gift. So in this case, my lord, we are in possession. Mutation has been done by the state government has supported my possession. The circle officer of Manihari has stated that we are in possession. Mutation was done as per law, and the donee has got it mutated in 2 days. That is violative of the provisions of the Mutation Act. So we have got by law the title and possession. We are occupancy rights under the provisions of Bihar Tenancy Act, and Section 89 says that no tenant shall be evicted unless a decree is obtained. We are occupancy rights, my lord. We have been in possession for the last 20 to 25 years, and the donee is not in possession. He could not get possession. He was a child for 2 years. He was in the lab, and his father left the village and lived at Jafarganj near Purnia, about 20 miles off. He could not get possession. My possession has been supported by the state. We are My lord, if I am permitted, I can read from the honorable आपकी पिटीशन बिना उसके अलाउ कर दे रहा हूं मैं। Supreme Court decision, my lord, is very much in my favor. इसकी जरूरत नहीं है वकील साहब, आप दूसरे लाइन पर चले जा रहे हैं। सिंगल जज में भी आपने यही बहस करके केस खराब कर लिया। हम बीएलटी के ऑर्डर को सेट असाइड कर रहे हैं। आई एम रिमांडिंग द मैटर टू द बीएलटी, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। वो बहस आप वहां करेंगे। दोनों आदमी ने म्यूटेशन करा लिया अपना। बीएलटी ने सीधा सीधा कह दिया कि आप, उसका म्यूटेशन पहले हो गया था रेस्पोंडेंट का, within 2 days, तो सही violative of the provisions of Mutation Act. You may have argued your case before different authorities, but try and hear the court. The court is passing an order in your favor, gentlemen. That is fraud, having been paid by the circle officer. बड़ा मुश्किल है। This is what आपके फेवर में ऑर्डर, आपके पक्ष में मैं ऑर्डर पास कर रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे करेंगे, समझने का प्रयास करिए। जो रेस्पोंडेंट नंबर 9 और 10 जो सिंगल जज के सामने थे, फादर एंड सन, डोनर एंड डोनी, ये क्या किए कि इन्होंने प्रॉपर्टी आपको वेंड करके और वो डोनी भी अपना भी नाम म्यूटेट करा लिया। ससुराल में चले गए। उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं फाइल की और आपने अपनी म्यूटेशन करा ली, और इनका जो म्यूटेशन था उसको भी अपील और उसमें हो गया। ये सारी बात बीएलटी ने देखा नहीं, और केवल चूंकि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे इसीलिए आपके क्लेम को खारिज कर दिया। और सिंगल जज चले गए उस बात पर कि हिब्बा और यादाश्त और रजिस्टर्ड डीड है। अभी वो देखने का समय नहीं है। मैं बीएलटी में भेज रहा हूं मैटर दोबारा, ठीक है? मैटर फिर बीएलटी में आपको जाना पड़ेगा। मैटर फिर बीएलटी से आपको शुरू करना पड़ेगा, इसको क्लियर करना। आपके केस को फिर से डिसाइड करने को बीएलटी के पास भेज रहा हूं। वही अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए। फिर बीएलटी जाना होगा, समझ गए आप? और वहां से ये इशू जो लर्नेड सिंगल जज ने कहा है, इसको मैं सेट असाइड कर दूंगा। बीएलटी में हुजूर मोहम्मदन लॉ समझेगा तब मोहम्मदन लॉ हुजूर बीएलटी में
खाली म्यूटेशन, कुछ नहीं जानता है वो लोग, Has notice been issued? कुछ नहीं समझता है वो लोग, मोहम्मदन लॉ समझेगा। लिखिए अब मिस्टर काउंसिल, यू कैनॉट से दिस। हुजूर यहाँ पर उसको ब्लेस किया जाए, रजिस्टर्ड सेल डीड 3-3 ठो है, वो इसके बहस पोजीशन है। उस बहस पर आप हार जाएंगे वकील साहब, आप बात नहीं समझे तो मैं क्या कहूँगा। उस बहस पर आप हार जाएंगे और इसीलिए therefore you have lost your case before the single हुजूर judge। जो अच्छा समझे, जो अच्छा समझेंगे वही करेंगे। मैं समझ रहा हूँ, अभी पहले नोटिस करते हैं, नोटिस करके इसे BLT भेजेंगे। नोटिस हो रहा है। लिखिए let notice be let notice be issued to opposite parties number notice be issued to respondents number 9 and 10 on steps being taken by the appellant within a period of 4 weeks, both modes, returnable on 27th of June। आपको requisites फाइल करना है 4 weeks में, बता दीजिए वकील साहब, स्टेट के वकील साहब जरा बताइए। requisites फाइल करेंगे 9 और 10 को जो है नोटिस इशू किए हैं सर, और जैसे 4 सप्ताह का टाइम दिया गया। 10 तो मर गया हुजूर, नोटिस उसको कैसे होगा? 10 इज डेड, रहमत इज डेड, रहमत इज डेड, तो 9 इज अलाइव, तो उसको एक मिनट 10 died in the month of February this year। जो डोनर था वो मर गया और उसका डोनी जो है वो एक ही लड़का है, बस वही, तो केवल 9 को कर देते हैं उसी को ना। नोटिस, उसी को किया हाँ, तो रहमत को छोड़ दीजिए, ओनली 9, ठीक है। इशू नोटिस टू रिस्पॉन्ड नंबर 9 ऑन स्टेप्स बीइंग टेकन। आप रिक्विजिट्स फाइल कर दीजिएगा 4 सप्ताह में दोनों मोड से, के अंदर 4 सप्ताह, ठीक। और रिटर्नेबल डेट क्या है? 27 जून। मेहरबानी, हम 4 सप्ताह कर देंगे नोटिस। 27 जून क्या? 27 जून नहीं, वो पूरा शेख पूरा मंगनिया। 4 जुलाई कर दीजिए, 4th of जुलाई। ऑल राइट, ये मैं अभी टेंटेटिव हमारा व्यू ये है कि ये BLT में जाना चाहिए। अब उनको सुन लेते हैं, उसके बाद मेहरबानी हुजूर की मेहरबानी। Seal 7, Mr. Jay Kumar Sinha। यस आई देखिए मेरा डंडा गिरा।